Sarvanand Sonowal, the Minister for the Captain of Ports and Waterways, ex-Minister and present MLA of Kalangut, Mr. Michael Lobo, the Secretary D.K. Ramachandran, the Principal Secretary Finance of Government of Goa, Kandavaluji, the Secretary for Shipping, Sri Sunil Kumar Singh, Secretary of the Government of India, M. Muruganandan, Chairman of Marmagua Port Town, it is Vinod Kumar. It is an honor and privilege to stand before you today on this auspicious occasion of the Indian Lighthouse Festival, hosted by the Government of India, Ministry of the Ports, Shipping and Waterways, in collaboration with Director General of Lighthouse and Lightships. We are gathered here at this historic Fort Agwat in the beautiful state of Goa, the place of epitomize and maritime heritage of our nation. The symbolism of lighthouse extend far behind their physical structure. They are beacons of hope, guiding ships safe through the treacherous water and serve as a symbol of strength, resilience, and navigation in channeling times. In much the same way, our nation has faced its own share of challenges, and yet, like the lighthouse, and we have preserved the shining bright and steadfast. Goa, with its long coastline and rich maritime history, is fitting host for this festival. Our state has always been melting pot for clusters, ideas and influences from around the world. And this festival is a testament to the unity in diversity that India represents. It brings together the people from the various walks of life, from the sailor and the lighthouse keepers to maritime enthusiasts and tourists, to celebrate our maritime heritage. As the Chief Minister of Goa, I am proud to wish come together to the mind and exchange knowledge and celebrate our shared maritime legacy. Our coastal state has played a vital role in India's maritime history, and it continues to be the hub maritime activity and trade. We as the Government of Goa have always promoted the maritime industries in the state. The establishment of the maritime cluster in Goa is one of our motive for uplifting the maritime industry in Goa. Though event like this festival, we not only celebrate our past, but also look forward to brighter maritime future. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Minister for the Port, Shipping and Waterways, Mr. Sarvanand Sonowalji, and the Directorate of the General of Lighthouse and Lightships for these efforts of organizing this festival. It serves as a platform for us to learn, grow, and strengthen our maritime connections. I encourage everyone here to immerse themselves in the festivities, engaging in meaningful discussions, and forgive the bodies. Let us work together to ensure that the light of the maritime heritage continue to shine brightly, guided us through the challenges in the future. बस इस समय पे हमारे बीच में जो स्टेट मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक यहाँ पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और खासकर इस आज़ादी के अमृत काल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी has given the idea of the Indian Lighthouse Festival. इनका मैं गोवा में इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे मंत्री जी सोनोवाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा के लिए माननीय मंत्री सोनोवाल जी उनके हर एक मिनिस्ट्री का फंक्शन यहाँ करने के लिए प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं गोवा की जनता की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे माइकल जी ने अभी उनको रिक्वेस्ट की है कि अगवात फोर्ट विच इज एन एएसआई मोमेंट, एएसआई मोनूमेंट, इस एएसआई मोनूमेंट पे
यानी आफ्टर द 6 o'clock यानी 10 बजे तक साउंड एंड लाइट शो के लिए वो हमें परमिट करे. ही विल ऑल्सो परस्यू, आई विल ऑल्सो परस्यू विद द मिनिस्टर फॉर द आर्ट एंड कल्चर. और निश्चित रूप से गोवा में आज तक साउंड एंड लाइट शो जो नहीं होता है, इस अगवात फोर्ट पे हुआ. तो मुझे लगता है कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का ये हम देना समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ गोवा के लिए. साउंड एंड लाइट शो आज के बाद मिल जाएगा. दैट विल बी द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ गोवा. निश्चित रूप से इसलिए इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल के बाद मुझे लगता है और अगवात फोर्ट एंड ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 15,000 टूरिस्ट जो हमेशा के लिए विजिट करते हैं पर डे. इस फेस्टिवल के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. आई थिंक मुझे ESI को बताना पड़ेगा कि 15,000 नहीं, कम से कम इसकी कैपेसिटी 20,000 तक करो. ऑनलाइन आप जो टिकट दे रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ आके वापस जा रहे हैं, उनको वहाँ पे जो अगवात फोर्ट देखने लायक है उनको देखने के लिए नहीं मिलता है. दैट इज ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द टूरिस्ट. ये भी इश्यूज आप लोग हैंडल करेंगे और आर्कियोलॉजिक ESI के साथ हम इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे, यानी कि ज़्यादा लोग ये अगवात फोर्ट विजिट कर सके. डेफिनेटली हमेशा के लिए यानी अब भी मैं मिनिस्टर सर के साथ बात कर रहा था. इट इज़ द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस विच इज़ अगेन जो अपने सोनोवाल साहब के आयुष मिनिस्ट्री का इवेंट जो गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था. आज तक वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो 7 जगह ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन गोवा में जो इवेंट हुआ 7 जगह जो इवेंट हुआ उससे 100 गुना ज़्यादा और 100 गुना अच्छा फेस्टिवल गोवा में हुआ था. मुझे लगता है, मैं जैसे माइकल ने बताया कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल नेक्स्ट टाइम जब आप गोवा में ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट विल बी द कैलेंडर इवेंट ऑफ द गोवा. और जैसे माइकल ने बताया, यानी गोवा के ढेर सारे लोग अलॉन्ग विद द टूरिस्ट इस फेस्टिवल में डेफिनेटली सहभागी होंगे और सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ ये होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. और जो लोग खास करके इस 3 दिन के इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए यहाँ पे आए हैं, खास करके नेविगेशन, मरीटाइम और दोज हु आर द एक्सपर्ट, दे आर डिस्कसिंग ऑन द वेरियस इश्यूज, उनका मैं खास करके स्वागत करता हूँ. डेफिनेटली 3 दिन के आपके इस इवेंट में आप वेरियस इश्यूज जो नेविगेशन, लाइट हाउस, मरीटाइम, इस पे आप डिस्कशंस करेंगे और आगे आने वाले मरीटाइम नेविगेशन के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन फॉर द न्यू जनरेशन के लिए रहेगा. और इट विल गिव द आउटपुट फॉर द नेविगेशन इंडस्ट्री, मरीन इंडस्ट्री. और आपका शेड्यूल भी मैं देख रहा था कि डेफिनेटली इससे नया आउटपुट इस इंडस्ट्री के लिए मिलेगा. इट इज़ इन बोथ वे फॉर द इनोवेशन पर्पज एंड द फेस्टिवल पर्पज. ये इवेंट हमेशा के लिए मार्गदर्शन रहेगा. और निश्चित रूप से यानी आपके मिनिस्ट्री जिस तरह से जो 70 डिफरेंट लाइट हाउसेस ऑल टुगेदर विच द कोस्टल साइड में ऑल टुगेदर फॉर द साउथ इंडिया हो या कोस्टल स्टेट की तरफ से हमेशा के लिए द लाइट हाउस आर द टॉर्च बेरर्स फॉर द नेविगेशन सिस्टम. इनके लिए एडवांस डेवलपमेंट जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री यानी विच द सोलर लाइटिंग और बाकी सब इनोवेशन जो कर रहे हैं, आगे आने वाले यानी जब कंस्ट्रक्ट हुआ था तब से लेके 100 साल अब तक जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो आपके एडवांसमेंट जो है, मुझे लगता है आगे 100 साल के लिए आपका मार्गदर्शन जरूर इस लाइट हाउस के लिए रहेगा और इन फ्यूचर जनरेशन के लिए ये काम आएगा, ये मैं कह सकता हूँ. और निश्चित रूप से फिर एक बार मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन विच इज द नव भारत निर्माण और इंडिया एट 2047 विकसित भारत की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो देश के सामने रख रहा है, हमेशा के लिए हर एक सेक्टर में यानी आगे की सोच, इनोवेटिव थिंकिंग, द डिजिटल इंडिया का थिंकिंग जो सामने रख रहा है, द सेम कंसेप्ट विल इम्प्लीमेंट इन दिस सेक्टर ऑल्सो. और निश्चित रूप से विकसित भारत करने के लिए आपका पोर्ट डिपार्टमेंट भी इससे आगे रहेगा. निश्चित रूप से मार्गदर्शन आप लोगों का भी इस लाइट हाउस और बाकी सभी सेक्टर में
रहेगा और ऑनरेबल मोदी जी का विजन विकसित भारत करने के लिए हम सब उनका साथ देंगे। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for your